Warm welcome to our community. Dr. Poonam, your voice is breaking. Poonam, you're not audible. Okay. Welcome to our respected dignitaries. Shri Devendra Trigunaji, President of GBRAV, Vaideshri Manoj Nesri, Advisor of Ayurveda, Ministry of Ayush, respected Vaideshri Anupam Srivastava sir, Director of RAV, our respected GB members, and today's our respected guest speaker, Vaideshri Govind Prasad Upadhyay ji, all the guests and students who have participated in this session. I welcome you all. आज हमें बताते हुए यह बहुत हर्ष हो रहा है कि आज गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे बीच उपस्थित है आरएवी के एसटीएम गवर्निंग बॉडी मेंबर वैद्य श्री गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से है और आज आयुर्वेद दृष्टिकोण से रक्त दुष्टि विकार इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे. ही विल एनलाइटन अस ऑन अ टॉपिक रक्त दुष्टि विकारा एज पर आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव. सत्र के अंत में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा जिसमें आप विषय से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं. देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन at the end to resolve the queries of participant. Now, without wasting much time, I would like to request respected admin officer, Shri N. Ramakrishnan sir, address us. Over to you, sir. Thank you, Poonam. So, welcome you all for the 52nd webinar of our series Gyan Ganga series. Before going into that, I would request that all gurus that we are also writing letters to all gurus regarding propaganda of the Ayush helpline 14443. So there is an Ayush helpline is there, which need to be propaganda given should be given properly to all the people, wherein it is a COVID helpline. It is designed all the facility, all Ayush system is there. Any person who is having any doubt regarding COVID, the Ayush is there to help them. That helpline is there, and I request all the gurus to take up this message. And we people have already taken up with the gurus, and gurus are also supported by giving in the social media and other things. So again, we are requesting to do in the vernacular languages also, so that it may reach to a greater extent. Okay, coming to the point. Today is the 52nd webinar of the Gyan Ganga series. I welcome you all for the first program by GP Upadhyay ji, today's lecturer. Professor GP Upadhyay ji is a long-term friend of RAV. Now he is a governing body member. He was such a friendly person with RAV, and he guided us in many situations. Now as a official governing body member, otherwise also, for last more than a decade, I am seeing, at least for more than a decade, GP Upadhyay's association with RAV, and the friendliness and what I have to say, he is ready to help us in every point, right from conducting the programs also. Many seminars he has conducted for RAV. So I am always thankful to GP Upadhyay. So welcoming you all, Vaidya Trigunaji, our governing body president, Vaidya Manoj Nesri, our advisor, Ayurveda, Ministry of Ayush, and my own director, Dr. Anupam. And welcome you all Gurujans of RAV and all students and other persons who are showing love and affection and joining to the RAV webinar. I see lot of persons who are not directly related to RAV, but still they are participating with great pleasure, and their support is encouraging us. So nowadays, I see a lot of support from our students also, as well as from other parts of the fraternity, Ayurvedic fraternity. So I welcome you all. Without taking much time, today the webinar on Rakta Dushti Vikara, an Ayurvedic perspective, will be taken up by Professor GP Upadhyay. So I hope you people will get enlightened from his lecture. Over to you, Poonam. Yes. Thank you so much, sir, for addressing us with your kind words. Now, before commencing the session, on behalf of, as per direction of director, sir, I would like to share that in last few months, we have successfully completed Ayush Samvad campaign in the form of lecture series.
by our respected RAV Gurujanas. But as per ministry's recent guidelines, we have to continue the Ayush Sanvad public awareness campaign in the form of lecture series, which can be organized through virtual mode, keeping in view the restriction imposed by government for physical gathering. The campaign material PPT can be referred to confirm the uniformity of content delivered to people. Keep organizing such lecture series for common public to make them aware of role of Ayurveda in COVID-19 prevention and management till 15th of August 2021, and relevant campaign material will be shared on respective mail IDs. Keep sharing the details of activities undertaken on our mail ID gspravdl@gmail.com before 15th of August 2021. Now, without much delay, I would like to share brief introduction of our today's respected guest speaker, Vaideshri Govind Prasad Upadhyay sir. Sir is presently serving as Mahamantri at Nikhil Bharatvarshia Ayurved Vidyapit, New Delhi. As a secretary at Bharatiya Vaidyak Samanvay Samiti Shri Ayurved College, Nagpur. He is also esteemed governing body member of RAV and president of Archana, a social cultural organization. Sir has earned MD in Chikitsa from BHU Varanasi and PhD from Nagpur University. Sir also served as professor and HOD in Department of Rog Nidan and Vikruti Vigyan at Shri Ayurved College, Nagpur. Sir has presented 55 research papers and published 62 papers, also published a total of 135 Ayurveda articles. Sir also has authored many books such as Vishikha Anupravesh Vigyanam, Nadi Vigyan, Rogi Rog Pariksha Paddhati, Nadi Pariksha Vigyan, Science of Pulse Examination, Ayurvediya Manas Rog Chikitsa, Swasth Tan, Swasth Man, Ayurved Chintan, and many more. Sir also have editing experience and taken active part in radio, TV talks, and Doordarshan. He had supervised 23 MD theses and also served as examiner at BHU, Mumbai, Amravati Universities. Sir has also served as ex-member of CCIM and Academic Council. He has bagged prestigious awards such as Best Ayurvedic Physician Award, Vaidya BG Ghanekar Memorial Best Teacher Award, Guru Vandana Samman, Samaj Bhushan Samman, and Ayurved Gaurav Puraskar. He has visited Germany for live demonstration of pulse diagnosis and Colombo, Sri Lanka as Ayurved expert for International Expo and seminar. Now, I would like to request Vaideshri Govind Prasad Upadhyay sir to please continue with the session. Welcome you, sir. नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है पूनम? Sir, please continue. परमादरणीय पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र पूना जी, भारत सरकार के आयुर्वेद सलाहकार वैद्य मनोज नेसरी जी, आरएवी के डायरेक्टर श्री अनुपम श्रीवास्तव जी, सम्माननीय गुरुजन, छात्र मित्रों और मेरे परम मित्र श्री कृष्ण खांडल जी जयपुर दिख रहे हैं मुझे, डॉक्टर पूनम। आज का विषय थोड़ा सा शास्त्रीय ज्यादा है, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है मनोज नेसरी जी की इच्छा है कि फंडामेंटल्स पर चर्चा होनी चाहिए। पुत्र दोष पर चर्चा होने के बाद अभी ये दूसरे पर चर्चा उन्होंने प्रारंभ की। रक्त दुष्ट विकार के विषय में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें चरक 24 विधि सोणती अध्याय का नाम ही है विधि सोणती, संबंधित। आगे जाके सूत्र स्थान में ही 28वें अध्याय में फिर वो रक्त विकारों का उल्लेख करते हैं आचार्य चरक, विविधा सिद्ध पीति अध्याय नामक अध्याय। उसी तरह हम जब सुश्रुत संहिता का अवलोकन करते हैं तो वो हमारे जो बृहद ग्रंथ हैं, तो उसमें सुश्रुत सूत्र स्थान 24वें अध्याय में जो व्याधि समुद्देशी अध्याय है, उसमें भी रक्त दुष्ट विकारों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद मानता है दोष धातु मलमूलम शरीरम, यह शरीर दोष धातु मलों का समुच्चय है। इन तीनों के कारण ही शरीर है, शरीर चलता है, शरीर की क्रियाएं संपन्न होती है।
इनमें यदि हम विचार करें तो मल यह है द्रव्य प्रधान है, इसमें द्रव्य अधिक है, गुण कम है, कर्म उससे भी कम है। धातुओं का विचार करें तो ये गुण प्रधान है, जितना द्रव्य होता है उससे अधिक गुण इसमें दिखते हैं और कर्म भी उतने ही दिखते हैं, जितने गुण दिखते हैं उतने ही कर्म दिखते हैं। दोष ये में द्रव्य कम है, ये कर्म प्रधान, दोष जो है ये कर्म प्रधान। इनमें द्रव्य की मात्रा कम है लेकिन गुण और कर्म बहुत अधिक है। उनमें भी यदि हम देखें तो वायु इसमें कर्म और ज्यादा है, द्रव्य बहुत कम है। पित्त में द्रव्य कम है, कर्म ज्यादा है। कफ में और द्रव्य थोड़ा अधिक है और कर्म थोड़े कम है। तो इस तरह से ये जो द्रव्य गुण कर्म और सामान्य विशेष सिद्धांत जिसके ऊपर हमारा सारा चिकित्सा सिद्धांत टिका हुआ है आयुर्वेद का, वह इन तीनों से जुड़ा हुआ है, दोष धातु मल। अब आयुर्वेद में इन्होंने कहा कि आचार्य सुश्रुत ने भी कहा, सभी ने कहा, बार बार कहा कि जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं वो दोषों से उत्पन्न होती हैं। सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम तल्लिंगत्वात् दृष्टफलत्वात् आगमाच्च। उन्होंने कहा वात पित्त कफ ये तीन दोषों से ही सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं और उसके लिए उन्होंने तीन तर्क दिए। पहला तर्क दिया कि तल्लिंगत्वात् अर्थात उनके लक्षण दिखते हैं, वात पित्त कफ के लक्षण हमको दिखते हैं। दृष्टफलत्वात् अर्थात वात पित्त कफ की क्षय वृद्धि की हम यदि उपचार करते हैं तो हमें परिणाम देखने को मिलते हैं, स्वस्थता परिणाम देखने को मिलते हैं। और आगमाच्य शास्त्र में भी ये बात कही गई है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब वात पित्त कफ ही सब कुछ, यही सारे दोषों के मूल कारण है, तो फिर धातु प्रदोषज विकार ये सीसीआईएम ने क्यों एक हेडिंग डाल दी और आचार्यों ने भी क्यों दूषजन्य व्याधियों का उल्लेख किया, रसज विकार, रक्तज विकार, इस तरह से उल्लेख किया। इतना ही नहीं, रसक्षय के साथ साथ यदि हम देखें तो रक्त पित्त, नहीं पित्त तो दोष है लेकिन पित्त के पहले रक्त कह रहे हैं। रक्तार्श, अर्श के वेदों में उन्होंने कहा कि रक्तार्श एक विशेष प्रकार है। उसी तरह से मेदो रोग, मेदो ग्रंथि, मांस ग्रंथि, शुक्राश्मरी, रक्तार्बुद, तो ये अनेक व्याधियां हैं जिनमें उन्होंने दूषियों का आधार पर नामकरण किया। जबकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो भी व्याधि है वो दोषों से उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है कि ये शायद उन व्याधियों में उन दोषियों का निदान की दृष्टि से, संप्राप्ति की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए आचार्यों ने इनका इस तरह से संज्ञाकरण किया। सबसे बढ़िया जो बात मुझे लगती है वो है भागवत की। भागवत जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधया संभवन्ति या तज्जानी व्युपचारेण तानाहुर्घृत दाहवत, कि ये जो रसादि के कारण से व्याधियां उत्पन्न होती है ऐसा कहा जा रहा है, यह व्यपदेश से उनकी प्रमुखता इसलिए है और इनको ऐसे समझना चाहिए जैसे गर्म घी में आपने उंगली डाली तो आप कहेंगे घी से जल गए। कोई घी से जलता तो नहीं है, घी नहीं जलाता, लेकिन में स्थित अग्नि ने जलाया। जलाना काम, दाह काम अग्नि का है। तो उन्होंने कहा कि ये उसी तरह है, व्याधियां तो दोषों से ही उत्पन्न होती हैं,
लेकिन इन दूषियों का उल्लेख या दूष्यगत व्याधि कहना उसी तरह है जिस तरह से हम कहते हैं घृतदार्वत, जैसे घी से जल गए, जिस तरह हम कहते हैं उस तरह से ये व्याधि होता है। लेकिन और भी आप आगे देखें तो फिर एक अलग ढंग का स्टेटमेंट हमको मिलता है चरक सूत्र 24 में। वो कहते हैं शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षादि उपाक्रांतास्य ये गदा सम्यक् सिद्धन्ति रक्तजास्तान विभावयेत्। वो कह रहे हैं कि कोई व्याधि उत्पन्न हुई है और वह उसके विरुद्ध गुणधर्म के द्वारा उपचारित करने पर, उसका इलाज करने पर, शीत का उष्ण से, स्निग्ध का रूक्ष से, इस तरह उपचार करने पर भी यदि लाभ नहीं मिल रहा तो उन व्याधियों को रक्तज व्याधि समझना चाहिए। अर्थात कुछ ऐसी भी अवस्थाएं हो सकती हैं जो अवस्थाओं में आप दोषों के अनुसार यदि उपचार करेंगे, मात्र दोषों को ध्यान में रखकर उपचार करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, अथवा व्याधि के द्वारा व्यक्ति के प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दूषियों का अपना महत्व है और दूषियों का भी व्याधि दूष्य सम्मूर्छना हम लोग बात करते हैं, व्याधि उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कुछ व्याधियों को यदि उनके नाम के साथ कहा जाए, और आचार्यों ने कहा भी है, जैसा मैंने कहा कि चरक सूत्र 24-28 में उन्होंने बाकायदे व्याधियां गिनाई हैं, रक्तज व्याधियां गिनाई हैं। रक्तज ही नहीं, रसज व्याधियां, मांसज व्याधियां, मेदोज, सभी की व्याधियों का उल्लेख उन्होंने। अब ये जो सप्तदूष है, इन सप्तदूषों में भी यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रक्त, शरीर के धारण के लिए, व्याधि उत्पत्ति के लिए, व्याधि संप्राप्ति के लिए, सभी के लिए यदि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वो है रक्त की। रक्त का महत्व बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा, देहस्य रुधिरम मूलम रुद्रेणैव धार्यते तस्माद् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्मृति। रक्त को प्राण ही कह दिया उन्होंने। ये रक्त की रक्षा बहुत यत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि उसी के कारण हमारा जीवन का धारण होता है। तो ऐसे एक नहीं, 20 रक्त से संबंधित 20 ऐसे तरह के रेफरेंस हैं, उनके देने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात जरूर है हर दृष्टि से कि ये करीब हमारे यहाँ प्रमाण में उन्होंने कहा कि जो रक्त है वो अष्ट अंजलि होता है, मॉडर्न के हिसाब से 5.6 लीटर के करीब ये रक्त होता है। लेकिन ये पूरा जादू का पिटारा है, इसमें सब कुछ है। मैं आधुनिक उदाहरण यदि हम देखें तो आज पैथोलॉजी की जितनी जांच हो रही है, या कोरोना को लेके बात कर रहे हैं तो अभी आजकल एंटीजन एंटीबॉडी की बहुत बात हो रही है। तो उस दृष्टि से ये सारा का सारा चीज, सारी बातें वो सब रक्त के अंतर्गत ही आ रही हैं। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से आगे कहा कि रक्त से वर्ण के प्रसादन होता है, मांसादि धातुओं की पुष्टि होती है। और ये जो हमारे यहाँ धातुपाक की बात है ना, केदारी कुल्य न्याय, वो केदारी कुल्य न्याय रक्त के द्वारा ही संभव होता है। ठीक उसी प्रकार संप्राप्ति में भी जब वो कहते हैं कि सारे दो शरीर परिधावता, तो परिधावन का काम तो सिर्फ रक्त से ही होता है। पिता नामे दोषाणाम शरीरे परिधाविताम यत्र शंका खवैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते। तो संपूर्ण व्याधियों में जो दोषों का परिधावन हो रहा है, चाहे वो प्राकृत दोष हो चाहे अप्राकृत दोष हो, सामान्य दोष हो या वैषम्य प्राप्त दोष हो, उनका परिधावन शरीर में जो हो रहा है वो रक्त के द्वारा ही होता है।
तो इसलिए रक्त बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात बड़ी मजेदार हम लोग को देखने को मिलती है, वो है कि स्वगत जो विकार है, सामान्यतः उन्हें रक्त विकार कहा जाता है और हम रक्त शोधक औषधियां देते भी हैं। त्वचागत जितने भी विकार हैं उनमें जब रोगी हमारे पास आता है तो हम कहते हैं रक्त शोधक औषधियों का प्रयोग करना। अभी हमारे एक मित्र क्या, हमारे सीनियर हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका फोन आया, अरे यार ये बताओ, बोले ये ब्लैक फंगस में क्या करना चाहिए, ब्लैक फंगस में क्या देना चाहिए। मैंने एक ही बात बोला, मतलब कुछ नहीं देना सर, रक्त शोधक देना चाहिए, स्थानिक भी रक्त शोधक दीजिए, सार्वजनिक भी रक्त शोधक दीजिए, काम हो जाएगा। कुछ दिन बाद फोन आया, बंधु अच्छा सूत्र दिया था आपने, बोले वो तो काम कर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि त्वगत विकारों में भी त्वगत विकारों को और रक्तज विकारों को बहुत साम्यता आती है। यदि हम रक्तोलिखित जो 63 के करीब हो जाते हैं, मतलब त्वरक के दोनों स्थानों पर व्याधियों का जो वर्णन है, यदि उनका हम देखें, कहीं कहीं रिपीट हुआ है, दोहराए गए हैं, लेकिन कुल देखें तो वो 63 करीब व्याधियां हो जाती हैं, रक्तज व्याधियां। उन 63 व्याधियों में त्वचा से संबंधित यदि हम देखेंगे तो वो करीब 18 व्याधियां जो है ऐसी हैं जो त्वचा से संबंधित। तो मैंने एक थीसिस पे काम कर रहा था कि त्वगत विकारों में रक्त शोधक औषधियों पर एक MD काम कर रहा था, रक्त शोधक औषधियों का प्रभाव, और वो बड़ा स्पष्ट प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाह्य मार्ग है, रोग बाह्य मार्ग है, वो सामान्य है, इसलिए ये इतनी समानता, इतना अंतर संबंध मिलता है। धातु त्वक्ष, रक्तादि धातु और त्वचा, ये बाह्य रोग मार्ग, तो यह शाखा रोग मार्ग भी आप कह सकते हैं। तो इस वजह से ये एक तीसरा डायमेंशन है जो रक्त विकार। चौथी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि यूं तो आचार्यों ने तीनों दोषों से दूषित रक्त के लक्षण वर्णन किए, वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण, तीनों दोषों के कारण दूषित होने के लक्षण मिलते हैं हमको। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो श्लोक सब पढ़ूं कि रहने दूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, मतलब तत्र फैनिलम अरुणम कृष्णम परशुम तरु शीघ्रम अस्कंदी च बातेन दुष्टम नीलम अनिष्टम पिपीलिका मक्षिकाणाम मस्कंदी च पित्त दुष्टम गैरिकोदक प्रतीकाशम स्निग्धम शीतलम बहलम पिच्छलम चिरस्रावी मांसपेशी प्रभवम च श्लेष्म दुष्टम। सुश्रुत सूत्र स्थान 14 में 21वें श्लोक में इसका ये मैंने अभी पढ़ा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि भले ही तीनों दोषों से रक्त दूषित होता हो, लेकिन रक्त के साथ सबसे ज्यादा किसी दोष का संबंध है, या सबसे ज्यादा रक्त यदि किसी दोष से प्रभावित होता है तो वो दोष है पित्त, क्योंकि रक्त यह उष्ण वर्गीय, उष्ण गुण संपन्न धातु है, और वात और कफ ये उष्ण गुण के कारण उतने अधिक संपुष्ट नहीं हो पाते, जबकि पित्त जो है वो समान गुण धर्म है। इतना ही नहीं, हमारे आचार्यों ने कहा कि रक्त का मल पित्त है, वो शायद दूसरे किसी पित्त की बात कर रहे हो, लेकिन आश्रय संबंध में भी पित्त का रक्त का सीधा सीधा संबंध है। तो पित्तज जो व्याधियां हैं वो व्याधियों में रक्त की दृष्टि, और रक्तज व्याधियों में पित्त का अनुबंध, पित्त का की उपस्थिति ये विशेष रूप से दृष्टव्य होती है, मिलती है। एक बात और मैं जब अभी पढ़ रहा था मैंने उसमें ध्यान दिया कि जो
रक्तगत विकार हैं, वो रक्तगत विकारों का भी स्थान, तो ये सारी व्याधियां, देखिए रक्तगत व्याधियां भी मैं उल्लेख करूंगा, मुखपात हो, नेत्र रोग हो, दुर्गंधि हो, रक्त गुल्म हो, संताप हो, अरुचि हो, सुरोवेदना हो, ये सारे जो रक्तगत व्याधियां हैं, इनका स्वतंत्र रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णन है और इनके अपने हेतु बताए हुए हैं, इनके पूर्व रूप बताए हैं, इनकी बताई है, बताए हैं, इनकी साध्यता बताई हुई है। ये सारा हम लोग देखते हैं। इन दोषों को मैं जब इन रोगों को मैं जब थोड़ा एनालाइज कर रहा था तो मैंने ये देखा कि अधिकांश रोग पित्त स्थानों से संबंधित है। मतलब पाचक, भ्राजक, रंजक, साधक, आलोचक पित्त जहाँ है, उन स्थान, उनके जो स्थान है इन 5 पित्तों के, उन स्थानों पर अधिक रक्त दुष्टजन्य व्याधियों का आश्रय होता है। अर्थात हमको इस बात का हर समय ध्यान रखना पड़ेगा कि रक्त जन्य जो विकार हैं उनमें रक्त की सुरक्षा तो करना ही है, रक्त प्रसादन तो करना ही करना है, लेकिन पित्त का ध्यान अवश्य रखना है। आगे तो उन्होंने कह ही दिया, रक्त जैसे रोगी सो रक्त पित्त हरि क्रिया। तो जो चौथी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी वो ये कि जो पित्त स्थान है उन पर रक्तगत व्याधियां, रक्तजन्य विकार या रक्ताश्रित विकार, कहीं रक्ताश्रित उन्होंने बोला है, उसमें भी थोड़ी बहुत विद्वत्ता हम लोग लगाते हैं कि इनको रक्तज माना चाहिए कि आश्रित माना चाहिए। शब्दों के प्रयोग आचार्यों ने दोनों तीनों प्रकार के किए हैं। मुझे लगता है कि ये दूषित ही होते हैं, दूसरे ही होते हैं और इन्हें दूसरे ही मानना चाहिए। सिर्फ इनका अलग नामकरण इसलिए है कि इनका संप्राप्ति में, इनका चिकित्सा क्रम में, इनका रोगी के प्राण रक्षा में, उसी तरह देखिए जैसे मैं एक उदाहरण हर समय देता हूँ कि व्याधियों के नामकरण उन्होंने जो किए हैं आचार्यों ने, वो लक्षणों के अनुसार किए। ज्वरयति ज्वरा, बुधेन बहुद्रव द्रव श्रवणम अतिसारा, कशनात काशा। लेकिन मर्मगत व्याधि जितनी है तो उनको सिरोरोग, हृदरोग, बस्ती रोग इस तरह से उल्लेख होना, क्योंकि उनको चिकित्सा करते समय उन मर्मों का ध्यान रखने की आवश्यक है। ये अपेक्षा रखते हैं आचार्य कि उन मर्म स्थानों का हमको सावधानी रखना है, उनकी सुरक्षा रखना है। ठीक ऐसे ही जब इनका आप उपचार कर रहे हो तो ये व्याधियां जिस दूसरे के अनुसार वर्णित है, चाहे जन्य बोलो चाहे आश्रित बोलो, रसजन्य बोलो चाहे रक्ताश्रित बोलो, रक्तजन्य बोलो चाहे रक्त आश्रित बोलो, उस समय जो भी व्याधि है उसका व्याधि परक उपचार आपको करना हो, जो भी दोष है उसके परक उपचार आपको करना हो करिए, लेकिन उस दूसरे विशेष का भी आपको ध्यान रखना है। इस दूसरे विशेष का संरक्षण आपको करना है। जैसे उन्होंने कहा ना, स्थानम तैदी पूर्वम तो स्थानिनम प्रतिकृत्यवा, तो स्थानिन का जैसे प्रतिकृत्य वाली बात है, वैसे ही इन दोषियों का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसलिए रक्त दुष्टजन्य विकारों का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया है, विचार किया गया है, विचार किया जाना चाहिए। रक्त तुष्टि के जो कारण बताए हैं उन कारणों से आज हम बहुत ज्यादा ओतप्रोत हैं, इस तरह से ऐसा कह सकते हैं। आज के जीवन में हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे जो दोष प्रकोपक तो है ही है, लेकिन रक्त प्रकोपक ना हो। अधिक नमक खाना, अधिक अम्ल खाना, अति क्षार खाना, दूषित आहार का सेवन, विदाही आहार का सेवन, विदग्ध आहार का सेवन, अध्यसन, विरुद्ध आहार, अब सब कर रहे हैं।
हम सभी बोलते हैं कि दूध के साथ नमक नहीं लेना, और चाय के साथ सब लोग नमकीन खाते हैं। चाय में दूध नहीं होता क्या? उसी तरह से आतप सेवन, फर्मेंटेड चीजें, जितनी भी फर्मेंटेड चीजें हैं वो सब की सब जो है रक्त दूषित करने वाली होती हैं। ठीक उसी तरह से अचार है, इमली है, चटनी है, क्या है, ब्रेड है, बिस्किट है, ये सारे के सारे रक्त प्रदूषक आहार विहार। रात्रि जागरण है, क्रोध है, क्रोध दोष, क्रोध कारण में भी है और क्रोध व्याधि भी है, क्रोध लक्षण भी है। अरे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि रक्त दुष्टजन्य विकारों में उन्होंने क्रोध, भ्रम, अतितमश इनका उल्लेख किया। ये सब के सब मन से जुड़े हुए या मस्तिष्क से जुड़े हुए लक्षण है, वो भी रक्त विकार जन्य। तो ये आहारों का, विरुद्ध आहार का सेवन, अध्यसन का सेवन हम लोग रोज करते हैं, और ये जो है रक्त दुष्टि का प्रमुख कारण है। और यही कारण है कि असमय बाल पक रहे हैं, ये भी त्वचा विकार है, बाल झड़ रहे हैं, हर लड़के को चश्मा लग रहा है, हर व्यक्ति को आज आपको मालूम है कि एनाल्जेसिक के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी दवाई है आज की तारीख में, वो एंटासिड या जिसे H2 ब्लॉकर बोल रहे हैं, वो बिक रहे हैं। हर दवाई के साथ उसको लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब वो दवाइयाँ भी रक्त दुष्टि करती हैं, पित्त वृद्धि करती हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज का हमारा जो आहार विहार है या हमारा सामान्य व्यक्तियों का आहार विहार है, वह रक्त दुष्टिकर अधिक है, और इसीलिए बहुत सारे त्वक विकार हमको देखने को मिल रहे हैं। और जो रक्तज विशिष्ट विकार है जिनका मैं उल्लेख करते हैं, वो विकार तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जो विकार हैं, भाई आज के हाइपरटेंशन को भी यदि आपको मानना हो तो अनेक अर्वाचीन आचार्यों ने उसको रक्त का ही विकार माना है। सोरियासिस है, तुम्हारे पिगमेंटेशन के सारे जो प्रॉब्लम हैं बच्चों में, खासतौर से युवान पीड़िका है, किशोर वय वालों में युवान पीड़िका है, ये सारे के सारे विकार रक्त दुष्टि के कारण। रक्त दुष्टि विकारों में अधिकांश रोग जो है वो मैंने बताया कि स्वतंत्र व्याधियां हैं। तत्र शोणजा रोगा प्रजायन्ते पृथग्विधा मुखपाको अक्षिरागस्य ऊतिघ्राणस्य गंधिता गुल्मोपकुश विसर्प रक्तपित्त प्रमीलिका। ये पूरा मुझे लगता है पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। चरक सूत्र 24 में 11 से 16 तक, 11 श्लोक से 16 श्लोक तक ये रक्ताश्रित व्याधियों का वर्णन है। 42 डिजीज का वहां पे वर्णन है, और आगे चरक सूत्र 28 में भी व्याधियों का वर्णन है। तो लेकिन इसमें हमको देखें बड़े अजीब अजीब लक्षण है, अरुचि की लक्षण है, अन्नपान विदग्ध का लक्षण है, चित्त उद्गीरण लक्षण है, अम्लोदगार लक्षण है, क्लम लक्षण है, क्रोधाधिक्य लक्षण है, बुद्धि भ्रम लक्षण है, शरीर दुर्गंधिता क्योंकि स्वेदाधिक होता है, मदोत्पत्ति। आप देखिए मतलब कैसे लोकों में बात चलती है, लोकोक्तियों में। कोई आदमी बहुत गुस्से में होता है तो गांव में लोग कहते हैं अरे अरे उससे बात मत करो यार, उसके दिमाग में खून चढ़ा हुआ है, उसके दिमाग में खून चढ़ा हुआ है, मतलब वो मारपीट करेगा, पक्का वो करेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये अनेक सिस्टम की व्याधियां हैं, पीड़िका, कोट है, कंडू है, चर्मदल है, कुष्ठ है, ये सब तो विकार है। उसी तरह से जहाँ 28वें अध्याय में उसमें कुष्ठ है, विसर्प है, पीड़िका है, रक्तपित्त है, अतिरिक्त महिलाओं में बुधपाक है, मेत्रपाक है, मुखपाक है, प्लीहा वृद्धि, गुल में विवृद्धि, नीलिका, कामला, व्यंग, किल्लू, तिल, कालक, शत्रु, चर्मदल, पित्त, पामा, कोट, रक्तमंडल आदि। तो ये
सारे व्याधियों का यदि हम अलग एक एक साथ अध्ययन करें और इनकी संप्राप्ति में, इनके आश्रय में यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि रक्त का बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। इसलिए ये दूषित तो है ही है, लेकिन इनके उपचार करते समय रक्त प्रसादन या रक्त शोधन की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए और लाभ होता है। मतलब प्रत्यक्षता हम लोग जो चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं वो देखते हैं कि चर्म विकार वालों में विरेचन देने से तत्काल लाभ दिखता है। एक और खास बात जो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि रक्त को लेकर आचार्यों ने पहली बार शुद्ध रक्त के सभी धातुओं के वर्णन किए, शुद्ध रक्त के वर्णन तो किए ही हैं उन्होंने। तपनीय त्रिगोपावम पद्मालक्ष्मणम गुंजा फल सवर्णम से विशुद्धम विधि शोणितम। लेकिन इससे ज्यादा मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है वो है कि परीक्षा की है। शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, जीव रक्त, मृत रक्त की परीक्षा की बात की। तो ये आज जहाँ पर पैथोलॉजी, मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री जहाँ पहुँच गई है उसको तो जाने दीजिए, वहाँ तक शास्त्रीय संदर्भ ढूंढना गलती है, क्योंकि ये सब नए इन्वेंशन है, न्यू इन्वेंशन है। लेकिन रक्त परीक्षा की बात कहकर आचार्यों ने, मुझे तो कई बार लगता है कि ये हमारी पहली बायोलॉजिकल परीक्षा थी। जब उन्होंने कहा कि तेनान्य विस्तृतम दद्यात् वायाश सुनिपिवा भुक्ते चेत पदे जीवम न भुक्ते पित्तमाशजे शुक्लम भावितम वस्त्रम भागवम पोषणवारिणा प्रक्षालितम विवरणम स्यात् पित्तम शुद्धम सुशोणितम। उन्होंने कहा कि उस रक्त को चावल के साथ या किसी भी खाद्य पदार्थ के साथ कौए को खिलाइए, भैंस को खिलाइए, और वो खाता है तो वो जीवित रक्त है, नहीं खाता है तो वो मृत रक्त है, ऐसा समझना। उसी तरह से उन्होंने कहा यद वासो न विरुद्ध, जो कपड़े को रंगे नहीं, उन्होंने कहा थोड़े गर्म पानी से धोइए और यदि वो कपड़े में दाग रहता है तो अशुद्ध रक्त है और यदि दाग नहीं रहता तो शुद्ध रक्त है। तो इस तरह से उन्होंने रक्त परीक्षा की भी बात की, रक्त पुष्टि की सिर्फ बात की, शुद्ध रक्त की बात की। जिस व्यक्ति में शुद्ध रक्त होता है उस व्यक्ति का वर्ण कैसा होता है, उसकी प्रवाह कैसी होती है, इसका वर्णन किया। और फिर रक्त की शुद्धता अशुद्धता का भी वर्णन हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने किया है। समय के साथ वो सब चीजें मतलब अधूरी, अपूरित, अल्प लगती हैं, लेकिन एक विचार, एक सिद्धांत उन्होंने दिया जो आगे जाके विकसित हुआ या हमें और विकसित करना चाहिए। हमारे विश्वनाथ द्विवेदी जी ने इस तरह की कुछ आयुर्वेदी आधार पर रक्त परीक्षाओं को विकसित किया था, वात पित्त कफ की रक्त परीक्षाओं को विकसित किया था। करने का आवश्यकता है, करना चाहिए। या एक बात जो हम लोगों को आजकल सभी हम लोग बार बार कहते हैं पढ़ेंगे वगैरह, कि जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन है, उन मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन का हम आयुर्वेदीकरण करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद में हो जाए। आयुर्वेद इंटरप्रिटेशन मॉडर्न में तो खूब हुआ। मॉडर्न की जो चीजें हैं, जो खासतौर से रक्त परीक्षाएं हैं, उनका हम लोग कर रहे हैं। आप सीरम बिलिरुबिन करते तो पांडु HB परसेंटेज आप करते ही हैं, पांडु के रूप, कामला के रूप में सीरम बिलिरुबिन करते ही हैं, तो रक्त वालों में आप करते ही हैं, मधुमेह वालों में रक्त शुगर का, ब्लड शुगर करते हैं। आजकल कंपलसरी है, करना जरूरी है, बिना उसके हम चिकित्सा का प्रभाव नहीं देख पाते। तो ये बातें सूत्र रूप में चाहे जैसे भी हो,
चाहे उन्होंने मधुमेह में मूत्र में पिपीलिका विसर्जन की बात की हो, चाहे यहाँ कुत्ते को खिलाने की बात की हो, चाहे साम्य राम बल की जन्य वज्र परीक्षा की बात की हो, लेकिन आचार्यों के दिमाग में ये था, ये विचार उनके दिमाग में था कि इन चीजों की प्राकृत अवस्था विकृत अवस्था को हम सिर्फ लक्षणों के आधार पर, कई जगह उन्होंने कहा कि कुछ जरूरत नहीं है, कर्म देखो, कर्म से समझ जाते हैं, शरीर में नहीं दिखता क्षय वृद्धि, लेकिन कर्म में दिखते हैं, लक्षण रूप में क्षय वृद्धि दिखती। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि रक्त पुष्टि का आचार्य ने शुद्ध अशुद्ध रक्त का, जीवित मृत रक्त की परीक्षा करने का भी विधान दिया है। उसी तरह से उन्होंने चिकित्सा सूत्र दिया, कुर्यात संवृत रोगेषु रक्तपित्त हरीम क्रिया विरेकम उपवासम च श्रावणम सोनित, और रक्त शोधन के साथ साथ रक्त प्रसादन के साथ साथ उन्होंने विरेचन करने का, उपवास करने का, और रक्त मोक्षण जो आज खूब चल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ रक्त मोक्षण हम लोग देख रहे हैं, जयोगा के माध्यम से भी और सेरावेद के माध्यम से भी, अन्य सारे जो पंचकर्म के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं हो रही हैं और उनके परिणाम, सत्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये जो चिकित्सा सूत्र है रक्त पुष्टि का, यह आज भी उपयोगी है, तब भी उपयोगी था और आज भी उपयोगी है, और तर्क संगत अपेक्षा के पूरी तरह से बाकी व्याधियों के साथ जुड़े या न जुड़े, लेकिन यहाँ पूरी तरह से वो तर्क संगत है, समीचीन है। जहाँ तक कुछ औषधियों के नाम है, मेरे ख्याल से उसकी भी उतनी कोई आवश्यकता नहीं है, सब आयुर्वेद के विद्वान लोग हैं। फिर भी निम्ब है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, एक साधारण सी वनस्पति है जो सब तरफ खड़ी रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे कॉलेज में मेरे ख्याल से 86 वगैरह की बात होगी, 86-90 के बीच की बात होगी, परमादरणीय नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में एक बात बोली थी, वो निम्ब पर मुझे याद आ गया कि हमारी तो स्थिति ये है कि जब विदेश से कोई चीज आती है तो हम महत्व देते हैं। बोले नीम जो मेरे घर के सामने है, उसका जब पेटेंट विदेश ने मांगा तब हमको समझ में आया कि ये काम का द्रव्य है। और मेरे अपने व्यक्ति का अनुभव है, कई लोगों को जिनको निम्ब पत्र चर्वण से या निम्ब स्वरसपान से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। उसी तरह मंजिष्ठा, सारिवा, बिडन, खजूर, बाक्षी, चोपचीनी, अमल की, गोरखमुंडी, चक्रमार्ग, शिरीष, गिलोय, हरिद्रा, गोरुचेन, खस्ती, रक्तचंदन, खश, ये अनेक औषधियां हैं जो निश्चित रूप से लाभकारी हैं। आचार्यों ने उनके गुणधर्म में रक्त प्रसादन, रक्त शोधन लिखा हुआ है, और वो रक्त प्रसादन, रक्त शोधन का काम हमें क्लिनिकली दिखता है, हमें रोगियों में मिलता है। श्री सावले के इतने अच्छे रिजल्ट हैं, महामंजिष्ठादि काढ़े के पिगमेंट खासतौर से पिगमेंट के डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अन्य जो व्याधियां हैं उनमें सूटसेकर, कामतुदा जो पित्त सामक हैं, उनका भी बहुत अच्छे परिणाम रक्त व्याधियों में आपको देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से गंधक रसायन है, निर्माल्य चूर्ण है, पंचतिक्त घृत गुगुलू है, कैशोर गुगुलू है, आरोग्यवर्धन। मैं मजाक में हमारे विद्यार्थियों को कई बार बोलता हूँ कि आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि उनको जो काम कह दो वो करके आ जाती हैं। जैसे कोई बहुत आपका योग्य विद्यार्थी रहता है, योग्य कर्मचारी रहता है, उसको जहाँ भेजो काम करके आ जाती है, काम कर देते हैं। वैसे ही आयुर्वेद की संजीवनी हो गया, सूर्यशेखर हो गया, आरोग्यवर्धनी हो गया, प्रवाल पंचामृत हो गया, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, सितोपलादी है, इतने सालों से ये योग बने हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर परिणाम के साथ देते हैं। तो आरोग्यवर्धनी रक्तज विकारों में भी बहुत अच्छा फायदा करती है, कुछ उस महत्वपूर्ण है उसमें, क्योंकि विरेचन इसमें काम करते ही करता है। मंजिष्ठादि चूर्ण है, हरिद्राखंड है, ये सारी औषधियाँ, योग जो है बहुत रसमाणिक है, बहुत अच्छे रिजल्ट
परिणाम इनके मिलते हैं। और लोगों ने सिर्फ तरतम भेद से करना आना चाहिए कि वो दोष कौन सा है, दोष कौन सा, दोष तो रखते रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में और कोई किन किन दोषों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कुष्ठ में सप्त दोष उन्होंने कह दिया। तो उसी तरह आश्रय कहाँ पर है, व्याधि का आश्रय कहाँ है। मैं जैसे रसमानिक की बात कर रहा हूँ, वो तो भी के लिए सुख विकारों के लिए ज्यादा अच्छा काम है, सुख से कर जो है उदरगत विकारों के लिए ज्यादा। तो मोक्षण और विरेचन, ये विरेचनम पितराणाम चेष्टम है। हमारे एक स्टूडेंट हैं आजकल तितिया कॉलेज में, काफी अच्छा नाम कमा रहे हैं, सोम कुंवर जी। वो पंचकर्म विभाग में हैं, शायद प्रोफेसर हैं अभी हैं। वो उन्होंने नींब तेल बस्ती का प्रयोग किया सोरियासिस वाले रोगियों में, बहुत अच्छे परिणाम उनको देखने को मिले। तो इस तरह से रक्त दुष्टि एक बहुत बड़ा विषय है, एक्चुअली बहुत विस्तृत विषय है। इसके एक एक पॉइंट पे जाके शास्त्रीय या चिकित्सकीय विवेचना करना, यानी वो एक एक दिन का अलग विषय है। मैंने संक्षेप में ये बात कहने का प्रयत्न किया। और चूंकि ये अवस्थाएं मिलती हैं, ये क्लिनिकल अवस्थाएं मिलती हैं, और आयुर्वेद की औषधियां इन अवस्थाओं में काम करती भी हैं, तो इसलिए इस पर विचार करके, अधिक से अधिक अध्ययन करके, तर्कसम्मत विचार करके व्यवहार किया जाए, हमको यश मिल सकता है, आयुर्वेद को यश मिल सकता है। आपने मुझे आमंत्रित किया और बहुत कम समय मतलब मिला मुझे। कल ही मुझे, परसों शाम को मुझे बताया गया, कल का सिर्फ समय था। तो फिर भी मैं आपके प्रति आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है क्या? बात की जाती है, बड़ी धीमी आती है आवाज, बहुत धीमी। त्रिपाठी जी, आवाज नहीं आ रही है। उपाध्याय जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जी जी। मैंने कहा सर सोराइसिस में रश्मानिक हाँ, और ठीक है दोनों सर। का, हाँ, मैंने कहा सर सिरासिंदूर रश्मानिक के दोनों का प्रयोग किया जा सकता है एक साथ सर? फिर से बोलिए। सोराइसिस में रश्मानिक और सिरासिंदूर दोनों दे सकते हैं? काय में? सोराइसिस में रश्मानिक और सिरासिंदूर, सोरियासिस में, हाँ। यदि दोनों का यदि प्रयोग एक आपको साथ ये कर लगता सकते हैं? है कि वो शराबी है या इन्फेक्शन आपको लग रहा है, तो देना चाहिए। सोरियासिस की अलग अलग स्थितियां हैं। सोरियासिस की अलग अलग अवस्थाएं हैं।
तो उसमें जो वो संक्रमण जन्य chronic अवस्था है, स्रावी अवस्था है, उसमें रसमाणिक का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छे लाभ में इससे। पानी Any further more questions from our respected guest? Any questions from participant side for our respected speaker? हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर आलोक बात कर रहा हूँ सर। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। सर मुझे ये जानना था, जैसे कि स्किन डिसऑर्डर में जब चर्म रोग है उसमें सर, जैसे आप कह रहे थे कि विरेचन का बहुत अच्छा रिजल्ट, तो सर जब विरेचन का हम कराने का सोचेंगे तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कैसे रखेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे? मैंने वही बताया, चिकित्सा में तर्क बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको दोष समूर्छना या त्वक विकार की स्थिति, है। त्वक विकार भी कोई एक विकार नहीं है, अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिए। सामान्यतः यदि शास्त्रीय आधार पर विरेचन करें तो ज्यादा अच्छा है। शास्त्रीय आधार पर विरेचन करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। पहले स्नान कराएं, फिर विरेचन दें, फिर पूर्व और पश्चात कर्म, पूर्व कर्म और पश्चात कर्म कराएं। यदि नहीं होता है तो मैं जो प्रयोग करता हूँ वो हर रोगी को, हर त्वचा वाले रोगी को आरोग्य वर्धनी 2 गोली रात में गर्म पानी से सोते समय देता हूँ। और यदि हमको ये लगता है कि भाई इसको कुछ वो मेटल वाली चीजें नहीं देना है, ज्यादा चीजें नहीं देना है, तो सामान्यतः उसके स्थान पर फिर पथ्याधिवटी का प्रयोग करता हूँ। वही 2 गोली रात में सोते समय बेहतर है। बेहतर और एक योग मैं बता दूं आपको, अभिपत्तिकर चूर्ण। यदि आपको लगता है कि उसको उदर संबंधी भी और प्रॉब्लम है, दाढ़ वगैरह भी है, तो अभिपत्तिकर चूर्ण का भोजनोपरांत उष्ण जल से प्रयोग कराना चाहिए। इस सामान्य विरेचन है, मतलब पूरे विरेचन नहीं है, लेकिन मल शुद्धि होती रहती है। और मल शुद्धि कम होती है तो रोगी को ईचिंग भी कम होती है, और यहाँ तक कि उसके पिगमेंट भी ठीक होने लगते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन खासतौर से कम होने लगता है। जी। हेलो। Hello. Any questions from participant side? Any further more questions? You are most welcome. सर, सर एक केस और पूछना था सर। एक जो बताया पत्ती exactly I couldn't hear. In psoriasis you have informed that some doctor is using them tel patti in psoriasis. What is it exactly, sir? Sorry. Hello. Hello. I could not follow your question. Sir, Hello? can you repeat the question? हाँ सर, आपने बताया कि in psoriasis nimb tel patti. Aman, exactly I couldn't hear. What was that exactly and how it is used? Hello.
सर मेरी आवाज आई है आप तक? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो सर आपने सोराइसिस में निम्ब तैल बत्ती बोला, कुछ मैं प्रॉपरली उसको सुन नहीं पाया है एग्जैक्टली वो क्या था। You were talking about your student who is using in psoriasis. What is that exactly and how it is used? just I have given the reference, sir, and Dr. Som Kumar is near to you. He is working at Trivia Ayurvedic College. You can meet him. And I suggest RAB. Hello. There should be a separate lecture for Panchakarma, Okay. Okay. use of Panchakarma in Rakta Dushti Vikara, because that is a very vast subject. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. सर दारूनक यानी डैंड्रफ में क्या दे सकते हैं सर? इज इट मतलब ये भी रक्त दुष्टि का ही टाइप है? डेंड्रफ में देखिए दो चीजें हैं। सबसे बढ़िया बात ये है डेंड्रफ के लिए मैं जो लोगों को बोलता हूँ कि इस तरह के विकारों के लिए यदि सार्वदैहिक कोई विकृति नहीं है तो सिर्फ स्थानिक औषधियों के प्रयोग की आवश्यकता है। स्थानिक औषधियों के प्रयोग की आवश्यकता है। उसमें हम तो जो कराते हैं कुछ नहीं, दही का पानी, दही जो है उसको टेढ़ा करके रख देते हैं, उसका जो पानी आता है उसका प्रयोग कराते हैं। और एक औषधि है वो शायद आपके उधर भी मिलती होगी, कच्चसन, वो होम्योपैथिक कंपनी बना रही है कच्चसन। ये अपनी जो दूधी होती है ना, दूधई, इसमें सफेद दूध निकलता है, उसका एक्सट्रैक्ट है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है 10 ml। उसको नारियल तेल में मिला के लगवाता हूँ और रोगी को बहुत अच्छे फायदे होते हैं। सप्ताह में 2 दिन दही के पानी से बाल धोने का और कच्चन वाला तेल लगाने का। और आपको शास्त्रीय आयुर्वेदिक करना है तो फिर वही नींब है, मंजिष्ठा है, थोड़ा सा गंधक है, ये रक्तचंदन है, इन सबको मिला के पाउडर बना के और उसका लेप लगाएं, फिर धोएं, नींबू क्वाथ से धोएं, तो ये शास्त्रीय उपचार होता है। खाने के लिए बहुत ज़्यादा दवाई देना पड़ता है क्योंकि क्या है अपने स्कल में सर्कुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए हम खाने की जो दवाइयाँ देंगे वो कब जाके वहाँ काम करेगी, उससे अच्छा है स्थानिक प्रयोग करना चाहिए। मैं वैसे खाने के लिए इन लोगों में आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य लगेगा, मैं सप्तामृत लोह देता हूँ। सप्तामृत लोह नेत्र विकार की है लेकिन वो सभी जत्रुर्ध विकारों में काम करता है। तो सप्तामृत लोह 2-2 सुबह शाम भोजन के बाद और आरोग्य वर्धने रात में सोते समय 2 गोली, और ये कच्चन का प्रयोग मैं तो कहूंगा कि सिर्फ बाह्य प्रयोग कराइए, आभ्यंतर प्रयोग की खाली डैंड्रफ है तो कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। Any questions from our participant side for our respected speaker? Sir, one more questions. Hello. Yes, sir. Yes, sir. सर कुछ पेशेंट्स आते हैं जो मतलब फीट में नीचे मतलब जलन निकलती है, आग निकलती है, रात को सो नहीं पाते हैं, उस केस में ड्रग ऑफ चॉइस आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? इफ यू कैन सजेस्ट, थैंक यू। हाँ अब थोड़ा सा आप अब आपका क्वेश्चन जो है सही लाइन पे है। देखिए रक्त और पित्त के जितने भी विकार हैं उनमें दाह, मित्राल्पता, नेत्रदाह, ये सामान्य बात है, सामान्य लक्षण है। और अभी
औषधियों की हम लोग त्वक विकार की जिन औषधियों की बात कर रहे थे, बिल्कुल भिन्न उनसे औषधियां आपको प्रयोग करनी पड़ेगी। सामान्यतः दाह वाले पेशेंट में हम जो प्रयोग करते हैं वो सूतशेखर, कामदूदा, गिलोय सत्व, ठीक है। और इसके साथ यदि आपको लगता है तो अभिपत्तिकरण चूर्ण मिला दीजिए, सबसे बढ़िया अभिपत्तिकरण चूर्ण मिलाइए। उसको दिन में 3 बार 4 बार, इस तरह का रोगी है उसके हिसाब से दाडिम आंवले के साथ देने का। दाडिम आंवले के साथ हम लोग, यहाँ महाराष्ट्र बहुत उष्ण प्रांत है और हम लोग दाडिम आंवले का खूब प्रयोग करते हैं, शहद की जगह दाडिम आंवले का प्रयोग करते हैं। और ब्राह्मी बेटी रात में सोते समय बस ये, और चंदन बला लाक्षादी तेल का अभ्यंग यदि वो कर सकें तो चंदन बला लाक्षादी तेल का अभ्यंग कराइए। तो दाह, निद्राल्पता, ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। रोगी को परहेज करने को जरूर बोलना चाहिए। आज ही दोपहर में मेरे पास एक महिला आई थी, वो गायिका है, बहुत अच्छी, नागपुर की लोकल आर्टिस्ट है, और वही विदग्धा जीर्ण, अम्लपित्त जो भी कह लीजिए, और निद्राल्पता इससे पीड़ित थे। 90%, सिर्फ 10 दिन की दवाई में 90% उसको रिलीफ है। अब आज उसने पूछा मैं क्या करूं, मैंने कहा बस अब आपको पथ्य करना है। उधर से संबंधित व्याधि में यदि आप पथ्य नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हिस्ट्री बड़े केयरफुली लेना पड़ता है। वो अग्रवाल हैं, पता लगा कि वो 3-4 पापड़ रोज खाती है भोजन के बाद। अब आप बताइए, वो भी बाजार के बने पापड़, उसको पूछा उन पापड़ के विषय में ज्यादा डिस्क्रिप्शन तो वो मालूम नहीं था, बस टेस्टी होते हैं, काली मिर्च रहती है, छार तो रहते ही रहता होगा, तो ये सारा उनको होने ही होना। तो मैंने कहा यदि आप ये परहेज नहीं करेंगे तो आपको दवा खाते रहना पड़ेगा। तो सूतशेखर वंडरफुल दवाई है, कामदूदा वंडरफुल दवाई है, सादे, कोई जरूरत नहीं है मोती होती की। पैसा लेना हो रोगी से तो मोती युक्त डालने की जरूरत है, या बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, मैं फिर वही प्रयोग की बात बताता हूँ कि बहुत पहले गोरखनाथ चतुर्वेदी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काम किया था, और उन्होंने पाया था कि स्वर्ण सूतशेखर से सादा सूतशेखर ज्यादा अच्छा का उपयोगी है पेट की बीमारियों के लिए, पेट की बीमारियों पर। नर्वाइन डिसऑर्डर जहाँ, नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट जहाँ था, वहां पे स्वर्ण सूतशेखर ज्यादा अच्छा काम करे। तो ये साधारण औषधियां हैं और इनसे मधुयष्टि आप मिला सकते हैं यदि आपको आवश्यकता लगती है कि इसको मेद्य औषधि की भी आवश्यकता है तो साथ में मधुयष्टि मिला सकते हैं। मेद्य औषधियों में स्पष्ट रूप से कुछ उष्णवीर हैं, कुछ शीतवीर हैं। तो जहां आपको पित्त का, रक्त का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है वहां पर शीतवीर दीजिए, और यदि आपको लगता है विबंध का इतिवृत्त है तो साथ में निशोथ डालिए, ठीक है। Thank you, sir. Thanks a lot. Any further more questions? हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। Sir, according to the Chikitsa Sutra, it is mentioned Virechan, Upvas and Rakt Mokshan. You have mentioned the utility of Virechan and Rakt Mokshan. How we can understand the concept of Upvasa in Rakta Drishti Vikar treatment? Hello. Yes, sir. According to classical references, for Pitta Sodhana, Virechan is best. And for Vatic disorder, the Basti is useful. ठीक है? Okay? Okay, sir. Is there any question from participant side?
Any questions? I think, sir, there is no more question. So we are concluding our session. Thank you so much for the great lecture, sir. It's time to propose a vote of thanks. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on 52nd webinar of Gyan Ganga Knowledge Wise, a webinar series organized by RAV. A big thanks to Vaid Govind Prasad Upadhyay sir for sharing his experience, views and knowledge regarding Rakta Drushti Vikar and Ayurveda perspective. Thank you, sir, for enriching our knowledge by your detailed discussion. I would like to thank respected Padma Bhushan Vaid Shri Devendra Trigunaji, President Governing Body of RAV, for his blessings and continuous encouragement. I am also grateful to Dr. Manoj Nesri sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, for his able guidance. I would like to take this opportunity to pay my heartiest regards to Dr. Anupam Srivastav sir for his continuous support, guidance, and enormous cooperation throughout the webinar. I want to thank Shri N. Ramakrishnan sir, Administrative Officer of RAV, for his continuous support. At last, but not the least, I would like to thank and congratulate Team RAV for their tremendous effort to put forward this webinar series a great success. I'm also thankful to all the participants, gurus, shishyas, who are constantly connecting with us throughout the series. Topic and speaker for the next webinar will be shared with you very soon. Thank you so much, sir. Now webinar is over. Participant may leave the meeting.